سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے دعوے ہوائی نکلے۔ مریض کی اینجیوگرافی ہونی ہے یا نہیں کیسے پتہ چلایا جائے؟ فیصل آباد سمیت 13 اضلاع میں دل کے مریضوں کو علاج فراہم کرنے والا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی سٹی اینجیو مشین سے محروم ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سردار حسین کی اس رپورٹ میں۔ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال تقریباً 13 اضلاع کے دل کے مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہا ہے مگر سٹی انجیو مشین سے محروم ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو متعدد بار سفارش بھی کام نہ آ سکی۔ ایم ایس کارڈیولوجی اسپتال ڈاکٹر ظفر عباس خان بلوچ کا کہنا ہے کہ سٹی انجیو مشین اے ڈی پی اسکیم میں شامل ہے۔ مشین بہت زیادہ مہنگی ہے، امید ہے اے ڈی پی اسکیمیں منظور ہوتے ہی مشین مل جائے گی۔ سٹی انجیو مشین سے مریض کی ابتدائی تشخیص معلوم کی جا سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ اس کا جلدی شروع ہونے والا ہے، تو ابھی اپنا چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں یہ آ جائیں گی ٹیمیں، اس کا سروے کریں گی، وزٹ کریں گی اور پھر کام شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب مریض اور ان کے تیمارداروں کا کہنا تھا کہ حکومت سے اپیل ہے کہ سٹی انجیو مشین فراہم کی جائے کیونکہ سٹی انجیو مشین کی فراہمی سے مریض کو انجیوگرافی سے بچایا جا سکتا ہے۔ سٹی انجیو ہونی ضروری ہے اس لیے کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو لیکن وہ انجیو پہ چلے جاتے ہیں، ان کے ایک تو ان کے پیسے کا ضائع ہوتا ہے، دوسرا ہاسپٹل کا جو اخراجات ہوتے ہیں اس پہ تو وہ بھی ضائع جاتے ہیں۔ میری نا گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ نا سٹی انجیو مشین کا نا بہت پرابلم ہے، مریضوں کو نا بہت مشکل پیش آتی ہے اور گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ سٹی انجیو مشین یہاں پہ فراہم کی جائے۔ سٹی انجیو کے لیے مریضوں کو پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال لاہور بھجوایا جا رہا ہے۔ سٹی انجیو مشین کی عدم فراہمی مریضوں کے ساتھ اسپتال انتظامیہ کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ اسدار حسین، فیصل آباد۔ ہوشیار خبردار، بچوں کے کھلونے اور شام میں گندا پلاسٹک استعمال ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈرپ سرنجز اور اسپتالوں کا دیگر آلودہ سامان کباڑ خانوں سے خریدا جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے ہسپتالوں کی ڈرپ، سرنجز اور دیگر اشیاء تلف نہ کرنے پر سربراہان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ استعمال شدہ پلاسٹک خریدنے پر کباڑ خانوں کو بھی سیل کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق گندے پلاسٹک سے تیار شدہ اشیاء بیماریاں پھیلانے کا بڑا سبب بن رہی ہیں۔ اسپتالوں کی نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو بھجوائیں گی۔ محکمہ ماحولیات نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ایسے یونٹ بارے اطلاع دیں جہاں گندے پلاسٹک سے اشیاء کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ یہ کہ جب ریسائیکل ہوتا ہے نا اس میں یہ موسٹلی جو یہ باٹلز کے اسٹرا وغیرہ بنتے ہیں یا بچوں کے کھلونے بنتے ہیں، یہ مختلف چیزیں جو ہے نا گھر میں استعمال برتن پلاسٹک کے وہ چیزیں یہ لوگ بنایا کرتے ہیں، جس وجہ سے جو الٹیمیٹلی ہاسپٹل ویسٹ کے کیونکہ یہ آلریڈی افیکٹڈ ہوتے ہیں ہاسپٹل ویسٹ کی وجہ سے، تو الٹیمیٹلی جو ہے نا جو اس کی بنی ہوئی چیزوں سے جو لوگ اس کو استعمال کریں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے ضلع بھر میں قائم کباڑ خانوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں تاکہ شہریوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوڑ سمیت ضلع بھر میں کورونا ویکسین کی قلت پیدا ہوگی۔ سائنو فارم کی پہلی اور دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشان ہو گئے۔ کورونا کے وار بڑھنے لگے جبکہ ضلع بھر کے ویکسینیشن سینٹر پر کورونا ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں سمیت مقامی افراد کو ویکسینیشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نائب آفیسر کلب اور ڈی ایچ کے اسپتال سمیت دیگر ویکسینیشن سینٹر پر سائنو فارم سمیت دیگر ویکسین کا سٹاک ختم ہو گیا، جبکہ ویکسین نہ ہونے سے شہری مایوس واپس لوٹنے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینٹر پر موجود عملہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہم کام چھوڑ کے آئے ویکسین لگانے کے لیے تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ابھی نہیں آئی ہے، جب آئے گی آپ آ جانا، ٹائم بھی نہیں بتا رہے کب آئے گی۔ ہم صبح سے آئے ہیں، ویکسین ان کے پاس ختم ہوئی پڑی ہے، وہ کیا نہ تو ٹائم بتا رہے ہیں کب آئے گی، تو نہ وہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے۔ سی ای او ہیلتھ چنیوڑ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف کا کہنا ہے کہ جلد ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین پہنچا کر شہریوں کو سہولیات فراہم کریں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں آنے والے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنایا جائے اور جن سینٹر پر ویکسین ختم ہو چکی ہے وہاں پر سٹاک فراہم کیا جائے تاکہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین علی زیبتوان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ بڑھتی مہنگائی نے کمر توڑ دی، مزدور حکومتی پالیسی سے ناراض نظر آنے لگے۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث مزدور طبقہ شدید پریشان دکھائی دیتا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی اور گھی سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، جبکہ بجلی کے بلوں میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سر جی، یہ مہنگائی کا جو اتنا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، ہم مزدور آدمی کدھر جائے؟
आटा, चीनी, घी, हर चीज़, यहाँ तक कि बिल जो है ना, बिल वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मजदूर हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी कमानी भी औखी है। महंगाई से परेशान मजदूर हुकूमत पर भी तनकीद करते नजर आए। कहते हैं हुकूमत ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मजदूर तबका जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट कम किए हैं, 1 रुपया पेट्रोल कम किया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। ये कोई महंगाई है? महंगाई आवाम को पिसने के लिए है। मजदूर तबका ऐसा है वो 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहा है। मजदूरों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब बआसानी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तब्दीली सरकार सस्ते सहूलत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। सहूलत बाजारों में सस्ती दालें, घी, चावल, सब्जियां, फल, दीगर अशिया खुरनोश गायब हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को अशिया खुरनोश की सस्ते दामों दस्तयाबी के लिए सहूलत बाजार कायम किए, मगर आवाम की सहूलत के नाम पर बनने वाले सस्ते बाजार बोझ बनकर रह गए हैं। बाजारों में आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जियां और फ्रूट समेत खाने पीने की दीगर अशिया नायाब हैं। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही जीना दोबर कर रखा है। सहूलत बाजारों से सस्ता आटा और दीगर अशियाए जरूरिया खरीदने आते हैं, मगर स्टॉल्स खाली पड़े हैं, जिसके बाइस खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मैं आटा लेने आया था यहाँ पे और तकरीबन 3-4 दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं, ना आटा मिल रहा है ना ही कोई और चीज़ें, सिर्फ ये दालें वगैरह हैं, ये तो हर जगह से मिल जाती हैं। आटा नहीं मिल रहा, 3-4 दिन हो गए यहाँ लोग जलीलो ख्वार होकर जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे ये नया नया लगा था ना बाजार, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ ज़रूर यहाँ पे सारी चीज़ें थी, पर इस बार ना आटा भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, स्टोर में से भी नहीं मिल रही। उधर से भी पता करके आया हूँ, मैं कहा शायद इधर से मिल रही है, नहीं मिल रही। दुकान वाले 1400 रुपये का थैला दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं रिलीफ दे रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं, काफ़ी दूर से आए हैं, फिर कुछ नहीं मिल रहा, खाली जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मुतलका महकमे फंड्स का रोना रोते और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि सहूलत बाजार बच्चों के खेलने की जगह में तब्दील हो चुके हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद के एक्सपोर्ट के लिए बड़ा दचका। कंटेनर्स के किराए आसमान पर। पिछले 2 माह के दौरान फ्रेट चार्जेस 500 से 700% तक बढ़ गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन का कहना था कि कंटेनर्स के किराए आसमानों से बातें करने लगे हैं। कार्गो की मांग में गैर मामूली इजाफे के बायस आलमी फ्रेट चार्जेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारा सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो $14 बिलियन की चाइना से है। वहां से $1600 में आपको कंटेनर मिलता था, जो कि मैं कहता हूं बहुत ही नॉमिनल था। आज वो जो किराया है वो $8000 पे पहुंच चुका है। कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन की आंख मचोली में कंटेनर्स भी मुख्तलिफ मुल्कों में फंस कर रह गए थे। इसके नतीजे में तलब और रसद के माबैन फर्क बढ़ता चला गया और यूं किरायों में भी इजाफा हो गया। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जबकि उनकी इकॉनमी डिस्टर्ब है, तो पाकिस्तान की माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, फॉरेन रेमिटेंस भी आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है या लोकल यहाँ से हम जब बाहर दूसरे मुल्कों में भेजते हैं या अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही नॉमिनल सा ये रेंट होता था, किराया होता था। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए फ्रेट चार्जेस को कम करने की अपील कर दी है, ताकि बढ़ती हुई पैदावारी लागत में कमी लाई जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अगस्त की एक्सपोर्ट एसोसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। से अगस्त के महीने में कितने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए, रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। सनती और कारोबारी अदारों और तंजीमों की जानिब से जारी सीईओज की रिपोर्ट मुरतब की गई। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में फैसलाबाद चैम्बर, पीटीआई, एपबूमा और टी डैब का डेटा लिया गया। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत से 4,63,00,000 से जायद के सीईओज जारी हुए। फैसलाबाद से जारी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की तादाद 1025 रही। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के 4,97,00,000 से जायद के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जारी हुए। पीटीआई की जानिब से होने वाले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की तादाद 850 रही। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन की 1,47,00,000 से जायद के ऑर्डर्स गए। एबूमा की जानिब से जारी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की तादाद 331 रही।
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से $6.4 मिलियन के ऑर्डर्स गए, जिनकी तादाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के मुताबिक 126 रही। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। FIA में ASI की पोस्ट पर भर्ती के लिए दौड़ और फिजिकल टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट FDA सिटी फैसलाबाद में हो रहे हैं, जहां नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुशअप तो कहीं उठक बैठक लगाते। ये नौजवान किसी मैच के नहीं बल्कि FIA में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आई 1345 असामियों में से आज ASI की पोस्ट पर भर्ती के मराहल का आगाज हुआ। जी, इंतजामात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और हमारी रनिंग क्लियर हो गई है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह ताला के यहाँ के हम आगे वाले टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे। ASI भर्ती होने के ख्वाहिशमंद 2000 से जायद उम्मीदवारान ने दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ के लिए कुल फासला 1.5 किलोमीटर जबकि मुकर्ररा टाइम 7 मिनट रखा गया। फिजिकल टेस्ट और छाती की पैमाइश के मराहल अभी बाकी हैं। दौड़ में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान अगले मरहले में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। आज ASI की दौड़ थी तो तकरीबन ये 1.6 किलोमीटर बनती है 1 मील और 7 मिनट्स में ये क्लियर करनी होती है। इंतजामात माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छे हैं। टेंट वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, अगर धूप है तो वो छाँव में बैठ सकते हैं, पानी का इंतज़ाम है। और जब रनिंग स्टार्ट होती है तो साथ साथ हमें मोटिवेट करने के लिए जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो स्पीकर्स में टाइम बताते रहते हैं, हमें मोटिवेशन देते रहते हैं कि आपने रुकना नहीं है और 7 मिनट्स भागते रहें तो आप इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और क्लरिकल स्टाफ की 1345 असामियों के लिए टेस्ट लिए जा रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ASI की पोस्ट पर भर्तियों के लिए 2000 से ज्यादा उम्मीदवारान दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिर भर्तियों के तमाम मराहल मुकम्मल होंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने मोहम्मद आजम को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नया चीफ ऑफिसर तैनात कर दिया। आसिफ कुरैशी को ओहदे से हटाए जाने के बाद नई तैनाती की गई थी। आपको इस हवाले से बताते चले, महकमा लोकल गवर्नमेंट ने मोहम्मद आजम को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नया चीफ ऑफिसर तैनात कर दिया। आसिफ कुरैशी को ओहदे से हटाए जाने के बाद नई तैनाती की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद में बिल्डिंग इंस्पेक्टर की कमी, नॉन क्वालिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर से काम चलाया जाने लगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की 11 सीटों में से 6 पर नॉन टेक्निकल अमला बिठा दिया गया, जिसकी वजह से कन्वर्जन फीस के मसाइल बढ़ने लगे। इस वक्त अरशद महमूद, नासिर शहजाद, गुलाम मुर्तजा, नवीद अख्तर, महमूद अहमद और आची यूनुस नॉन क्वालिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात। दूसरी जानब शहजाद अली खान, नासिर अली, फैसल मुनीर, हमजा फजील, उस्मान रसूल क्वालिफाइड इंस्पेक्टर हैं। शहरियों ने क्वालिफाइड इंस्पेक्टरों की तैनाती का मुतालबा कर दिया ताकि कन्वर्जन फीस की अदायगी में मसाइल कम हो सकें। कॉर्पोरेशन अमला को ना टोटली तौर पे ना उनको अपना अमल दरामद जो है वो उनको सही कराना चाहिए। टोटल जो मसले मसाइल जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑपरेशन अमला आंदा ही नहीं है जी, बड़ा मुश्किल होंदा है जी, इत्थे बड़ी परेशानियां बनदियां ने, मेहरबानी करके वो ठीक करो जी। शहरियों ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कमी की जिम्मेदारी भी कॉरपोरेशन इंतजामिया पर डाल दी। शहरियों का मौक़िफ़ है कि अगर कॉरपोरेशन अमला टेक्निकल और ताउन करे तो यकीनन शहर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया शहरियों की जानों से खेलने लगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की सुस्ती, शाहराओं और मेन गफूराबाद रोड पर खुले मैन होल शहरियों को मौत का पैगाम देने लगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया ने मुबैना तौर पर शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने से मुंह मोड़ लिया। अंदरून शहर की गलियां, बाजारों के बाद मेन शाहरात और मेन गफूराबाद रोड पर बने मेन होल्स हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों का कहना है गली के मेन होल्स में गिरकर बच्चे जख्मी हो रहे हैं। इंतजामिया को दरखास्तें देने के बावजूद मेन होल्स पर ढक्कन नहीं रखे गए। शहर पूरे में मेन होल जो खुले हुए हैं उनका कोई वाली वारस नहीं है। रात को गुजरते हैं, यहाँ लाइट भी नहीं है। ये मेन गफूराबाद रोड है, इसमें ये देख लें आपके सामने ही है मेन खुला हुआ हॉल, और रात को यहाँ लाइट भी नहीं होती। रात को गुजरते हुए कई आदमी गिरे भी हैं इसमें, और इंतजामिया ऐसी है कि गफलत का बहुत शिकार है। मेन शाहरात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। बेशतर जगहों पर मेन होल्स के ढक्कन भी टूट चुके हैं, कहीं सिरे से गटरों पर ढक्कन ही नहीं। रात के औकात में हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने और खुले मेन होल्स पर ढक्कन रखवाने का मुतालबा कर दिया है ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। झंग में पेट्रोल पंप्स पर वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल मिलेगा या नहीं, फैसला न हो सका। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 50% शहरियों को वैक्सीन लगवाने के बाद पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज महल से पेट्रोल पंप एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की।
पेट्रोल पंप पर वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को पेट्रोल न देने पर गुफ्तगू हुई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। डिजिटल एक्सरे फिल्म नायाब, लोग प्राइवेट महंगी एक्सरे करवाने पर मजबूर। 5 रोज से चक्कर लगा रहे हैं। इमरजेंसी में भारी फीस देकर भी प्राइवेट जाना पड़ता है। मरीजों की दुहाई। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सन के अस्पताल में अब इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। सबसे बड़े DHQ अस्पताल में डिजिटल एक्सरे फिल्म नायाब हो गई। शहरी प्राइवेट महंगे दामों एक्सरे करवाने लगे। गुज़िश्ता 5 रोज से एक्सरे फिल्म ना पहुंच सकी। इमरजेंसी के मरीजों को भी प्राइवेट ही एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि पहले अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती थी, अब एक्सरे भी बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। महंगाई ने तो पहले ही जीना मुश्किल कर दिया है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ 600 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। यहाँ पे जो एक्सरे फिल्म है वाकई बिल्कुल नायाब हो चुकी है। मरीज़ और लाहिकीन दोनों परेशान हैं और इनका ये सीरियस मामला है। इसको हुकूमत सीरियस ले और यहाँ पे लोगों की मुश्किलात को देखा जाए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हकाम बाला को खत लिख दिया है, जैसे ही फिल्म आएगी मरीजों को सहूलियात मुहैया कर दी जाएंगी। DHQ अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल मायने खेज होता है, जहां पे जिला भर के अवाम ने यहां पे अपना इलाज के लिए आना होता है। लेकिन इसी हॉस्पिटल में एक्सरे फिल्म ना होने की वजह से बेशुमार लोग जो है अब प्राइवेट इलाज करवाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सन। ब्रिटिश हाई कमीशन के नुमाइंदा एलेक्स बेलिंजर की फैसलाबाद आमर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी मोहम्मद इदरीस की रिहाइशगाह पर शहर की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। शिराज पट की रिपोर्ट देखिए। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐवान सनत और तिजारत हाजी मोहम्मद इदरीस की रिहाइशगाह पर जोहराने का एहतमाम किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन के नुमाइंदा पंजाब एलेक्स बेलेंजर ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। एलेक्स बेलेंजर का कहना था, फैसलाबाद में आज पहली बार आया हूँ। यहाँ का सनती सेक्टर और सनतकार बहुत मेहनती है। UK और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। And the textile sector is doing extremely well, with over £2 billion of exports from Pakistan to the UK. Obviously, we want to improve the investment in the opposite direction as well. इस मौके पर ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां जावेद इकबाल ने कहा कि फेडमिक बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का पाकिस्तान के साथ मुआशी ताल्लुक मजबूत करने का बहुत बड़ा जरिया है। तो हमें तमाम पाकिस्तानियों को पूरी हिम्मत करनी चाहिए कि हम इस नए दौर में पूरी तरह मुतहर्रिक हों और वो अपॉर्चुनिटी जो पिछले 1.5-2 साल से रुकी हुई थी उसमें भरपूर हिस्सा लें। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सैयद जिया अलमदार हुसैन का कहना था कि बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक को मुख्तलिफ सेक्टर्स और शोबों में सरमायाकारी करके जोड़ा जा सकता है। यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तीसरा, हमने उनसे ये बात की है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। तो इस तरह जब ये मुलाकातें बढ़ेंगी तो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। बिजनेस कम्युनिटी से राना सिकंदर आजम, राशिद मुनीर, आतिफ मुनीर, मोहम्मद सईद शेख, इमरान महमूद, चौधरी नवाज, खुरम शहजाद समेत मियां तनवीर और अहमद हसन भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रोडक्शन इस्लामाबाद ब्रिगेडियर कामरान आदिल का फैसलाबाद का दौरा। FCCI के सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद समेत दीगर अफराद से मुलाकात की। पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख के लिए कौमी इदारों के ताउन पर बातचीत हुई। इस मौके पर नायब सदर राना अयूब असलमन, CEO हैप्पी लीग ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का, चेयरमैन सीबैक कमेटी इंजीनियर अहमद हसन, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर राना इकरामुल्ला और सेक्रेटरी चैम्बर राना नज़ीर शरीक हुए। मुलाकात में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख के लिए कौमी इदारों के ताउन पर बातचीत हुई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चन्योट में योम दिफा और अकीदा खत्म नबूवत प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। इंतजामिया के साथ मिलकर शहर के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया गया। फैसलाबाद में लिटरेसी डे के मौके पर लिटरेसी टीचर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और DO लिटरेसी नवीदुल हक ने शिरकत की। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर लिटरेसी टीचर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी गई। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पर
सीओ एजुकेशन ऑफिस में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सीओ एजुकेशन अली अहमद सयान और डीओ लिटरेसी नवीदुल हक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद लिटरेसी सेंटर्स में खिदमात देने वाले तमाम असातिज़ा की हौसला अफजाई करना था। सीओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर लिटरेसी टीचर्स में तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स भी तकसीम की। लिटरेसी टीचर को बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए दाखिला मुहिम मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। दुनिया भर समेत चनियोट में आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान, सीओ एजुकेशन जफर अब्बास रिहान और डीओ लिटरेसी मैडम रोहीना गुल ने खुसूसी शिरकत की। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीओ लिटरेसी चनियोट डॉक्टर रोहीना गुल ने लिटरेसी डे की अहमियत और लिटरेसी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि दीगर मुकर्ररीन ने इस्लाम में तालीम की अहमियत को उजागर किया। बादशाह आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान ने की। वॉक में एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू इमरान असमत पन्नू, सीओ एजुकेशन जफर अब्बास रिहान, डीओ लिटरेसी चनियोट डॉक्टर रोहीना गुल समेत दीगर अफसरान और अमले ने शिरकत की। सैयदा खातून जनरल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की तकरीब का एहतमाम किया गया। सीओ सैयद मोहम्मद शर्जील, डॉक्टर रुजीना अख्तर, साबिया खान समेत दीगर ने शिरकत की। शहरियों को स्पेशल बच्चों के लिए फिजिकल थेरेपी की अहमियत के बारे में आगाही दी गई। सैयदा खातून जन्नत अस्पताल एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर केक काटा, जबकि इस दिन की मुनासबत से वालिदैन और शहरियों को आगाही दी गई। इस मौके पर सीओ सैयदा खातून जन्नत स्पेशल एजुकेशन सेंटर सैयद मोहम्मद शर्जील, डॉक्टर रजीना अख्तर और साबिया खान समेत दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। डॉक्टर रजीना अख्तर का कहना था कि मेडिकेशन के साथ साथ फिजिकल थेरेपी भी बहुत अहमियत की हामिल है। स्पेशल बच्चों के जिस्मानी अज़ा को मुतहरिक करने के लिए फिजिकल थेरेपी का मददगार साबित होती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।